Yes, dear students, in chapter 10, up to exercise 10.3, we have completed. Now we will start next theorem. That is, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. First of all, you must know about the angle subtended by arc. Suppose this is an arc, this is the center. So this angle is made by the arc at the center, and the rest part from here to here we can take any point on this arc. On this side, suppose you take this point, you will get this angle in the rest part. Suppose you take here, so this angle will be in the rest part. Suppose you take here, this angle will be in the rest part. Means at any point on major arc AB, the angle will be rest part angle, and this will be the angle subtended by the arc at the center. Okay, so here in this theorem we have to prove the angle subtended by arc at the center, this one. Suppose I take angle 1 and these are the angles. Suppose I take this one, so we have to prove this angle 1 will be twice of angle 2. This is our theorem. So for this theorem there will be three conditions. Arc may be minor, may be major, or may be semicircle. So three figures will be there. Only one figure we have to prove. First of all, when arc is minor, O as the center, this is the angle subtended by arc AB at the center, and take C is any point on the remaining part of the circle. So from here we will prove. Second one, when arc is a semicircle, so this will be the angle subtended by an arc at the center, and this will be the angle subtended by that arc in the remaining part. And then if arc is major, suppose this arc is major, so this angle will be angle subtended by the center at by arc at the center, and this will be the remaining angle. So these three figures will be there, three conditions. We have to prove only in one condition. We will take this one. So you will write given AB is an arc of COR, circle with center O and radius R. Angle AOB is an angle subtended by arc AB at center, and angle ACB is an angle subtended by arc AB at rest part of the circle. Okay, now to prove. In to prove we have to write only first case I will take. यहाँ पे लिख देना केस फर्स्ट. To prove, you have to prove angle AOB
will be equal to twice of angle ACB. Then construction step. In construction, you have to write join CO and प्रोड्यूस. इसको ज्वाइन करना और आगे प्रोड्यूस कर देना. राइट. उसके बाद आपके पास जो एंगल्स बनते हैं, आप इसको एंगल 1 नेम दे देंगे, इसको एंगल 2 नेम दे देंगे, इसको एंगल 3 नेम दे देंगे, इसको एंगल 4 नेम दे देंगे. ये एंगल 5 रह जाएगा आपका और ये एंगल आपका रह जाएगा 6. फिगर में आपको एंगल्स के नेम दे देना है. अब आता है आपके पास प्रूफ. और प्रूफ में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में you will write AO is equal to OC, so angle 1 will be equal to angle 3. AO जो साइड है वो OC साइड के इक्वल है because they are radii of the same circle. So the opposite angles of these sides will be equal to 1. तो एंगल 1 और एंगल 3 आपके इक्वल बन जाते हैं. ऑल्सो इन ट्रायंगल BOC आपका जो BO है वो OC के इक्वल है, तो यहां भी आप बोलेंगे सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4. रीजन लिख देना इनका. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स. राइट. उसके बाद आप बोलेंगे नाउ अगेन इन ट्रायंगल AOC angle 5 is an exterior angle, so angle 5 will be equal to angle 1 plus angle 3. The exterior angle of triangle will be equal to the sum of interior two opposite angles of the triangle. So this will be, and when angle 1 and angle 3 are equal, so we need here for angle 3 1, so we will convert angle 3 into angle 1. That is, at the place of this you can write angle 5 will be equal to angle 1 plus angle 1, then angle 5 will be equal to twice of angle 1, and you will write equation first here. Okay. Also in triangle BOC angle 6 is an exterior angle, so angle 6 will be equal to angle 2 plus angle 4. Again angle 2 and angle 4 are equal, so you will write angle 6 will be equal to angle 2 plus angle 2, because we need to angle 2 here. So this will be angle 6 will be equal to twice of angle 2, and you will write equation number 2. Up to this you will do your work. After that, adding इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करते हैं तो आपके पास आता है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे. आप लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2. मीन्स 5 और प्लस 6 एंगल जो है वो टोटल बनता है एंगल AOB. will be equal to, when we take 2 as common, angle 1 plus angle 2, and angle 1 plus 2 is angle ACB. Means angle AOB will be equal to twice of angle ACB, and after that you will write hence proved. Only this we have to prove. I repeat one time the solution. We will take 3 conditions. For the given condition, arc subtended, the angle at the center and the angle at the rest part of the circle.
And theorem is we have to prove the angle subtended by an arc at center is twice of angle subtended by arc at the rest part of the circle. So we will take three conditions. So only in one condition we will prove it. We join CO and produce it. Then angles will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we will take this AOE axis triangle and BOC triangle. In these triangles, two sides are equal. So we will show their opposite angles will be equal. In this triangle we get angle 1 and 3 equal. In this angle 2 and angle 4 equal. Now 5 is the exterior angle. So angle 5 will be equal to the sum of two interior opposite angles. So angle 5 will be equal to angle 1 plus 3, and 1 and 3 both are equal. So we will convert angle 3 into angle 1. We get angle 5 is equal to twice of angle 1. Similarly, in this triangle we get angle 6 will be equal to twice of angle 2, and now two equations will be there, and when we will add the equations we will get our result. This is the theorem. Important theorem है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे. नेक्स्ट, इनमें रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूव करने का. वन केस अगर आप प्रूव करते हैं दैट्स सफिशिएंट. ओनली ये बना के चलते तो भी चलता है. बाकी ये कि कोई क्वेश्चन रेज कर दे कि आर्क जो है वो सेमी सर्किल भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, तो कैसे प्रूव करेंगे. प्रोसेस वही है. इनमें भी वही आप इनको ज्वाइन करेंगे, इनमें भी इनको ज्वाइन करेंगे, और वही ट्रायंगल्स आएंगे, उनके अपोजिट एंगल्स को शो करना है और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है. आफ्टर दैट our next theorem. See, next theorem is 10.9. Angles in the same segment of a circle are equal. Now question is different. He says angles in the same segment of a circle are equal. Same segment means, suppose this is a circle and this is an arc AB. These are two angles in the same segment. Now take this as C and this as D. If I take this angle as one angle and this angle as 2, so in this theorem we have to prove angle 1 will be equal to angle 2. You will write given. In circle, angle ACB and angle ADB are the angles subtended by arc ACAB in the same segment. Okay. After that, to prove, we have to prove angle 1 will be equal to angle 2, or you can write angle ACB will be equal to angle ADB. After that, construction step is there. In construction, we will take the center of the circle and join AO and BO. Join AO and BO. Now proof. Take this as angle
3, you will write angle AOB is an angle subtended by arc AB at center. Okay, now angle 3 will be equal to twice of angle 1. जो फर्स्ट थ्योरम अभी हमने यूज की थी उसका रिजल्ट यहाँ पे यूज कर देंगे कि आर्क से जो सेंटर पे एंगल है उसके रेस्ट पार्ट के एंगल का डबल रहेगा. आप इसको एंगल इक्वेशन 1 नेम दे देंगे और इसका रीजन लिख देंगे. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल. दिस रीजन यू विल राइट इन फर्स्ट थ्योरम स्टेटमेंट जो है वो रीजन यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे. अगेन एंगल 3 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और वही सेम रीजन रहेगा. आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, in equation first left hand side angle 3, in equation 2 left hand side angle 3, so they are both right hand side angles will be equal, means twice of angle will be equal to twice of angle 2. 2 in both sides cancel down, you get angle 1 is equal to angle 2 and hence proved. So much easy theorem you can prove. Okay, its next theorem is इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है. क्वेश्चन में आ जाता है, थ्योरम में भी आप काउंट कर सकते हैं. वो आपसे कहता है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल आर्क विल बी 90 डिग्री. या आप ये कहें एंगल इन द सेमी सर्किल विल बी 90 डिग्री. तो उसके लिए भी आपको यही प्रूव करना है. सिंपली यू विल प्रूव, वहां पे आपके पास जो आर्क है वो सेमी सर्किल हो जाएगी. जब वहां पे आप कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो वो आपका डायमीटर हो जाता है और डायमीटर स्ट्रेट लाइन रहेगा. जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, हमने लिया ये आर्क है ए बी, ये हो गया सेंटर ओ. आपने को प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री रहेगा, ये प्रूव करना आपने. तो हम ले लेंगे इसको एंगल 1 ले लीजिए, इसको एंगल 2 ले लीजिए. अब जो एंगल 1 है वो इस आर्क से सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है. तो एंगल 1 जो है वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री. व्हाई? बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल आपका 180 डिग्री आ जाता है. और ऑल्सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, देन ट्वाइस ऑफ एंगल 2 विल बी 180 डिग्री. और यहां से आपके पास आएगा एंगल 2 विल बी 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट्स 90 डिग्री. और आपके पास प्रूव हो जाएगा कि जो सेमी सर्किल का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री एंगल आता है. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, आपकी नेक्स्ट थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है. सो उससे पहले आप एक बार ये चीज सोच लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती क्या है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल वर्टेक्स पॉइंट एक सर्किल पे लाई करते हैं, लाइक दिस ए बी सी डी. ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो सारे वर्टेक्स पॉइंट्स हैं ये एक सर्किल पे लाई करते हैं. इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसकी प्रॉपर्टीज आती है, इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ये भी आपको प्रूव करना है, आगे थ्योरम आएगी. अभी ये कहता है कि इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल, दे आर साइक्लिक. दिस वी हैव टू प्रूव. आपसे कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है. तो इसके लिए हमें फिगर तो बनाना ही पड़ेगा. जैसे ये कहता है कि 2 पॉइंट्स है, पहले रफली आप समझिए इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है सेम साइड में 2 पॉइंट्स हैं. सपोज एक पॉइंट यहाँ पे हो गया
एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, इसको सी और इसको डी लेते हैं। तो कहते हैं कि आपको प्रूव करना है कि ऑल जो पॉइंट्स हैं ये एक सर्किल पे लाई करेंगे, दे विल लाई ऑन द सेम सर्किल, या वो साइक्लिक होंगे, ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसके लिए आपके पास केसेस बनते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 केसेस बनेंगे। ऑल 3 केसेस वी हैव टू प्रूव। सी गिवन वी विल टेक A, B, C and D are 3 points, sorry 4 points. 4 points such that अब यहाँ पे आपको फिगर शो करना है। फिगर शो में आप क्या बताएंगे, ये तो आपका सेंटर ले लेंगे और यहाँ पे रहेगा आपके पास ए बी, ये जो स्ट्रेट लाइन थी वो थी, और उसके रेस्ट पार्ट में जो 2 पॉइंट्स आते हैं वो है। आप इनको सर्किल पे ही शो करेंगे, ये सी, या इधर सी ले लीजिए और इधर डी ले लीजिए। ओके, सच दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। बस ज्यादा लिखने की नीड नहीं, आप इतना शो कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपको आता है टू प्रूव। टू प्रूव में आप लिख देना ए बी सी एंड डी आर साइक्लिक। साइक्लिक लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए इन पे लाइज ऑन द सर्किल। उसके बाद आता है आपका टू प्रूफ, और प्रूफ में आप लेंगे केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में देखिए आप क्या लेंगे, हमने एक थ्योरम बताई थी आपको, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्किल, या आप ये कहें देयर विल बी वन एंड ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने कहा था कि ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया, बट आप इसको लर्न रखें, आगे लर्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट इसका यूज होगा। तो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनसे सिर्फ वन एंड ओनली वन सर्किल पास होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, हमने 3 पॉइंट्स से तो ले लिया कि वहां से सर्किल पास होता है, आपने को सिर्फ प्रूव क्या करना है कि जो 4th पॉइंट है वो भी सर्किल पे लाई करेगा। हम ले लेंगे केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट बाद में। अभी ये कीजिए, लेट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर on the circle, okay, because one and only one circle can pass through 3 non-collinear points. Now let point D is either on the circle or inside the circle or outside the circle. ओके, जब केस फर्स्ट रहेगा ऑन द सर्किल रहेगा तो फिर आप तो कोई प्रूव करना ही नहीं आपको। आप लिखेंगे केस 1, और केस 1 में डायरेक्ट लिख दीजिए व्हेन डी लाइज ऑन सर्किल then points A, B, C and D are cyclic। आप उसके बाद लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में आपको क्या करना है, लेट पॉइंट D is in the interior part ऑफ द सर्किल। ओके, डी को हमने इंटीरियर पार्ट ले लिया, तो इसके लिए यहाँ पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर में आप शो करेंगे ए बी, यहाँ पे हमारे सी पॉइंट ले लिया,
और लेट डी पॉइंट को आप यहां पे शो कर दीजिए। यहाँ पे डी है और ये D1 है, क्योंकि जो सर्किल पास होगा तो हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और ये इसको डी डैश पे इंटरसेक्ट करेगा। देन द सर्किल passes through points A, B and C will intersect the produced line BD at D dash। हमने जो A B C से सर्किल पास हो रहा है, हमने लिया कि जो BD है उसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसको D डैश पे वो इंटरसेक्ट करता है। ओके, नाउ पॉइंट्स A B C and D dash are cyclic, then angle ACB will be equal to angle AD dash B, क्योंकि यहाँ पे AB आर्क के अकॉर्डिंग जो ACB ये एंगल और ये AD dash B ये सेम सेगमेंट के एंगल आते हैं तो वो इक्वल रहेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये गिवन है। सो जो हमारा एंगल ADB आएगा वो एंगल AD' के इक्वल आ जाएगा। बस ये चीज समझने की, उसके बाद क्वेश्चन हो गया है। देखिए हमारा जो ACB एंगल है ये इसके इक्वल आएगा। इसके लिए तो हम रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, ये आपके पास गिवन है, रीजन दिया, दोनों एक ही चीज के इक्वल है तो वो दोनों भी इक्वल रहेंगे। और यहां पे जब ये राइट डाउन करेंगे तो हम लिखेंगे बट इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट D and D dash coincides or you can say lies on the same point, lies on the same point, right? Hence A, B, C and D are cyclic। यह आता है केस फर्स्ट सेकंड का प्रूफ। अभी केस थर्ड है, वो भी सेम ही है, बस इतना समझ लीजिए। ये अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझ लेना इसको। उसके बाद केस थर्ड देखिए आप, यहां के बाद सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इसको एक्सटीरियर पॉइंट शो कर देंगे हम, तो हम कह देंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसको प्रूफ वही होना है। केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड में लेंगे व्हेन पॉइंट D lies on the exterior part of the circle। जब एक्सटीरियर पार्ट में करेगा तो आपके पास फिगर ये आएगा। हमने लिया ये A, ये B, यहां से ये एंगल ACB, और जो एंगल D है वो एक्सटीरियर पार्ट पे है, तो हमने एंगल D को यहां शो कर देना है D, और जहां इंटरसेक्ट करता है उसको D डैश पॉइंट दे देंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, लेंगे लेट ए सर्किल
passes through three non-collinear points A, B, C, intersect B, D at पॉइंट D डैश। हमने लिया कि ये जो B D है ये इसको D डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, नाउ points A, B, C, D dash are cyclic. So जो एंगल A C B आएगा वो आपका इक्वल आएगा एंगल A D डैश B, और इसके लिए रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, अगेन बट एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल ए डी बी के। ये डी डैश है भी, ये आप लिखेंगे गिवन है। सो एंगल ए डी डैश बी जो है वो इक्वल आ जाएगा एंगल ए डी बी के। इन बोथ से अपने पास ये आता है और उसी के लिए फिर सेम लिखेंगे, बट it can be possible only and only when point D and D dash lies on the same point. Hence A, B, C, D are cyclic. This only we have to prove in this theorem. So new theorems will be there related to cyclic quadrilateral. They we will prove in next class. So for today only these theorems are there for you. So you have to prove them and write these in your notebook. Thanks.